Yeah. So students, we are going to take up with the case 2 right now. In the case 2 says that discounting of bill from bank, right? So in this case, the discounting of bill has been discussed. Or discounting of bill mein kya hai? Let's see the question first. It is the case 2, as I've referred here, case 2. On 1st September 2020, Advika sold goods to Adya worth rupees 10,000. So you have to understand the sequence. That is, the goods being sold by Advika to Adya of worth rupees 10,000. It is on credit, and immediately draws a bill on Adya payable 1 month after date. और एक bill उसने draw किया. See, the Advika has already sent the bill along with the goods to the Adya. उसके बाद bill भेजा है जिससे कि that is she is going to sign it. Adya is going to sign it that I am going to pay on such and such date. So that bill used to get the validity only when she is going to sign. उसका otherwise the bill is just like a paper. So that validity is given by whom? Adya, that she is going to pay on such and such date. So she agrees and उसने क्या किया? Sign कर दिया and given the bill back to the, that is Advika. So these are the two sequence in this question. So let's see the as per this two sequence, what are those two sequence are. First sequence, you all of you see here. I have taken one character here, Advika, and another character Adya. The Advika is selling the goods to whom? Selling the goods to Adya. Adya ko bech rahi hai. So in this case, the drawer is Advika. The one who is selling the goods is called drawer. One who is purchasing the goods is called drawee. ये आपको clarity होनी चाहिए. So in this case, the goods being sold by the, that is Advika to Adya. Now this has been sold, fine. Now Adya has accepted the bill. The one who is purchasing the goods, when she accepts the bill and give the bill back to the drawer, that is Advika, that is a second sequel. There is a second sequel, that is this bill is being given. So for Advika, that is drawer, the bill is referred as bill receivable. Why it is a bill receivable? Because it is an asset for the Advika. Because उसके basis पे उसको पैसा मिलेगा किससे? Adya से. तो bill receivable is an asset. और Adya has to pay the money, that is drawee has to pay the money. Therefore, the bill what she has signed and given to Advika, that has been referred as bills payable, which is a liability for her. I hope you understood this. Anivesha, समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay, fine. Now this is a two sequence you have to understand. So in the books of Advika, that is Advika के book में हम कर रहे हैं यहाँ पे. Advika, that is drawer, and this is in the books of Adya, that is drawee. So I've already written these two entries. So 1st September 2020 is the date. Adya account debit to sales account. Adya account debit to sales account क्यों किया मैंने? Why I have debited the Adya's account? Because Advika is selling the goods to Adya on credit. तो Adya को जब credit में बेच रही है तो वो receiver हो गई. तो debit the receiver. तो Adya's account debit. What 10,000 rupees. Then what she has done, sold the goods. So when goods been sold, as per journal entry, sales is an income for the company. So as per the normal account, debit the your all expenses and losses and credit all income and gains. So sales account is credited because of that. Worth is 10,000. Okay. And on the same date, 1st September 2020, that is Adya is purchasing the goods. So purchase account debit to Advika's account, because Advika is a receiver or giver. Advika is a giver. So debit the receiver, credit the giver. So Advika's account is credited here with worth rupees 10,000. Got it? ये first entry suppose समझ में आ गया बेटा. This is the first entry here. Then after that, the second entry is what? The second sequence is what? That this Adya has signed the bill and given the bill to whom? Given the bill to whom? The bill has been given to, that is Advika. Advika को दे दिया गया bill, and that bill is referred now here as bill receivable because it is an asset. And Adya के लिए वो bill payable कहलाएगा,
and that is called referred as liability because she has to pay the bill on the date of maturity. जो due date होगा उस पे उसको pay करना है, ठीक है. Now in this sequence we are going to reflect here 1st September 2020 bill receivable account debit. Why bill receivable account debit? Because she is giving the bill to Advika is receiving the bill, and assets में rule क्या है? What comes in? Real account का rule क्या है? Rule है आपका what comes in debit. So bill receivable account debit with 10,000 rupees. Who is giving? Adya is giving. Adya is the receiver, giver. She is a giver. So debit the receiver, credit the giver. So giver को हम credit करते हैं as personal account. So Adya has been credited here. Bill receivable account debit to Adya's account ये हमने कर दिया. इसी का सेम सामने जो सीक्वेंस होगा इन द बुक्स ऑफ आद्या, शी इज गिविंग द बिल, तो बिल्स पेबल कहलाएगा, टू बिल्स पेबल हो जाएगा वो, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, राइट. एंड अद्विका जो है, हम अद्विका विल बी डेबिटेड, अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज अद्विका इज अ रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर इन दिस केस डन. सो 10,000 यहाँ पे सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड सीक्वल का. नाउ इन द सेकंड थर्ड सीक्वल व्हाट इज बीन सेड, दैट इज Adya accepted the bill and returned it to Advika, तो हो गया. Advika immediately sent the bill to her bank for getting the rest amount after discounting of rupees 200. So Advika was needing the money. So in that case, she can't wait for 1 month. 1 month wait करना उसके लिए possible नहीं था. So what she has done, she has encashed her that bill from her bank. तो बैंक को उसने बिल भेजा, और बैंक को जब बिल भेजा उसने तो क्या किया, see here the bill has been given to the bank, बिल उसने बैंक को दिया, और बैंक ने उसके करंट अकाउंट में, उसके बैंक बिजनेस पर्सन के कौन सा अकाउंट होता है, तो बिजनेस फर्म का अकाउंट होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट में, उसके करंट अकाउंट में कितना अमाउंट डाल दिया, हाउ मच रुपीस आफ्टर डिस्काउंटिंग 10,000 रुपीस था, 10,000 था, डिस्काउंट कितना था 200 रुपीस का, लेस कर दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 9,800 rupees she has, that bank has put in her account. तो उसके जो करंट अकाउंट था उसमें डाल दिया. तो in this case what will happen, you have to write it here in the 1st September 2000, that is bank account debit, how much she is getting, 9,800 rupees. So write down here 9,800. discount on bill receivable or discount charges भी लिख सकते हो बेटा इसको, you can refer as discount charges also. इसको मैं discount charges ही कर देता हूँ for better understanding. डिस्काउंट चार्जेस डेबिट क्यों हो रहा है बेटा, तो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस आर द लॉस फॉर द अद्विका. तो डिस्काउंट चार्जेस उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, बैंक इज डिडक्टिंग 200 रुपीज फॉर द प्री दैट इज पेमेंट ऑफ द अमाउंट. सो 200 रुपीज का 1 मंथ का डिस्काउंट बैंक ने कट कर लिया, जो भी परसेंटेज होगा बैंक का रेट के हिसाब से, एंड द बिल इज बीन गिवन, बिल रिसीवेबल अकाउंट, इस बिल इज बीन गिवन टू द बैंक, that is of worth rupees 10,000. Now you can see here, this is between whom, this is between whom, this is between Advika and the bank. It is between the Advika and the bank. This is nothing to do with the Adya. इस sequel का आद्या से कोई लेना देना नहीं है. Hence on September 1st 2000 I have written mentioned here no entry. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सीक्वेंस का कोई एंट्री नहीं है. Therefore I have put this entry for you to understand it better. So no entry will pass for this sequence because this is Adya has nothing to do with the Advika's interaction with the bank, right? So that is done. After that, on the due date, the payment is made. कौन देगा due date पे payment? आद्या देगी payment. किसको देगी payment? Definitely bank को देगी. Now bill is with whom? Bill is with the bank. बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो बैंक को बिल दे देगी कौन, दैट इज बिल, सॉरी बैंक जो है बिल देगा आद्या को. सो बिल विल बी गिवन बाय ऑन द ड्यू मैच्योरिटी डेट. ड्यू मैच्योरिटी डेट क्या होगा बेटा इसके अंदर आपका, देखिए 1 मंथ बोला आफ्टर डेट, दैट इज 1 मंथ. तो 1 मंथ क्या होगा, सितंबर में पूरा मंथ लगाएंगे, तो 30th सितंबर हो गया, प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ले लीजिए, 3 डेज ग्रेस ले लीजिए, तो आपका ये आ गया, दैट इज 4th of October को द पेमेंट विल बी मेड. 4th of October को पेमेंट मेड कर दिया जाएगा. तो शी हैज गिवन द, बैंक हैज गिवन द बिल इसको मिल गया, एंड शी हैज गिवन द अमाउंट टू द बैंक उसने अपना पेमेंट कर दिया.
और किससे पेमेंट करेगी? डेफिनेटली शी विल डू बाय चेक, शी विल नॉट गिव द कैश इन दिस केस। तो एंट्री किसमें आएगा? आद्या में आएगा एंट्री ऑन 4th of October 2000। ये एंट्री हम करेंगे किसमें? आद्या में। शी इज रिसीविंग द बिल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट मत करिएगा बिकॉज बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक विल नेवर एक्सेप्ट इन द कैश फॉर्म। वो उसको देगा, उसको हमेशा चेक या किसी और ड्राफ्ट से या किसी तरह से पेमेंट करना है, तो बैंक आगे यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। कितना पेमेंट लेगी बैंक? उससे 10,000 का बिल दिया था, तो 10,000 का ही पेमेंट वो बैंक लेगी, तो ये आ गया अमाउंट आपका। हेंस दिस इज डन। ये आपका एंट्री हो गया। अब यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या? डेफिनेटली Advika has nothing to do with this because now she has already given the bill to bank. The bank will get the money from the Adya. If she dishonors, then the consideration will restart. Otherwise, the sequence is over. The sequel is over. So in this case here, no entry will be here for this receiving of money by the bank from the Adya. तो इसके अंदर कोई एंट्री, इसके सिमेट्री में देखिए सामने सामने है, इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। ये आप चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप दिस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बेटा समझ में आ गया? हेलो, यस सर। आगे समझ में? ठीक है। Now I'll be going for that is something that is relation to your dishonoring of the bill in this case, है ना? Dishonoring with noting charges and dishonoring without noting charges. तो हम पहले without noting charges कर लेते हैं कि अगर dishonoring होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो dishonoring का मतलब है that is the concerned person that is who's supposed to pay the money, that is Adya, she didn't pay the money due to certain condition. उसके पास हो सकता है उस समय अकाउंट में पैसे इतना ना हो, she was not aware of the amount, how much amount is going to be debited from her account, उसको क्लैरिटी नहीं थी, ध्यान नहीं रहा, या किसी और क्लाइंट ने उसके अकाउंट से उसको निकाल लिया पैसा, तो अब बचा उसके अकाउंट में कम पैसा पड़ा, है ना? तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। तो देयर कुड बी लॉट ऑफ इश्यूज बट शी हैज नॉट मेड द पेमेंट। यस अद्विका। So why wouldn't there be any entry in the drawers account at the time of dishonor? ड्रॉर्स अकाउंट, हाँ ड्रॉर्स अकाउंट में भी होगा, ड्रॉइंग अकाउंट में भी होगा, डेफिनेटली बिल्कुल होगा। बैंक ने अगर बैंक जा रही है, बैंक जा रहा है उसके पास लेने के लिए पैसा, एंड शी इज नॉट इन पोजीशन टू पे द बैंक विल डू व्हाट? टेल मी। सर आपने बट नो एंट्री लिखा था। किस चीज के लिए बेटा? नहीं, डिसऑनरिंग में नहीं पॉसिबिलिटी है ना। बैंक इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम होम, bank is going to take the money from the account of the that is Advika. बैंक अपना लॉस क्यों करेगा बेटा? बैंक लॉस नहीं करेगा, बैंक इज नॉट गोइंग टू डू लॉस। अब आपका ये वाला जो एंट्री था बेटा, जस्ट ध्यान रखेंगे, आई एम गोइंग टू शेयर दिस एंट्री बेसिकली। ये वाला जो एंट्री है आपका, ये मैं उसको पूरा शेड कर रहा हूँ। ये वाला एंट्री आपका नहीं आएगा अगर आपने पेमेंट डिसऑनरिंग केस होगा तो। आई एम देयरफॉर शेडिंग दिस फुल column. This entry won't be coming if there is a dishonoring case. अगर dishonoring case होगा तो ये एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि dishonoring में that Adya has not paid any amount to the that is the bank actually, ठीक है ना, कुछ पेमेंट किया ही नहीं उसने, तो उस पर dishonoring हो गया। तो dishonoring होगा उस कंडीशन में क्या होगा? सी, तो डिसऑनरिंग हुआ मतलब बैंक तो गया ना उसके पास बिल लेके, तो 4 अक्टूबर को बैंक गया बिल लेके 2000, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज का बिल उसने रिसीव कर लिया, बट नाउ शी इज नॉट इन पोजिशन टू पे अद्विका, तो शी विल डू व्हाट? शी विल राइट हियर अद्विका's नेम अद्विका, वो अद्विका का नाम लिख लेगी, बिकॉज नाउ अद्विका इज अ क्रेडिटर। अद्विका क्या बन जाएगी? उसकी क्रेडिटर बन जाएगी। शी इज अगेन सपोज टू पे अद्विका, सो टू अद्विका's अकाउंट 10,000 रुपीज वो उसको क्रेडिटर मानते हुए क्रेडिट कर लेगी। एंड बैंक विल डू व्हाट? बैंक विल आस्क फ्रॉम अद्विका, दे विल नॉट गोइंग टू फाइट विद द आद्या कि भाई पैसा नहीं दिया तो उससे लड़ाई हो रही है, नो। बैंक विल आस्क द अद्विका
to kindly pay the money from her account. So what will be happening in this case? The 4th of October 4th 2028 2000 अब अमाउंट जो है इसमें क्या आएगा, इसमें अमाउंट तो कुछ आ नहीं रहा अभी, तो पैसा तो रिसीव हो नहीं रहा, बस देना पड़ रहा है आपको पैसा. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दे विल डेबिट द आद्या's नेम. डेटर हो गया, आद्या विल बिकम नाउ डेटर. आद्या's account debit to bank. ये बैंक अकाउंट क्यों आया है? बिकॉज नाउ वी हैव टू पे द, Advika has to pay the bank in that case. So 10,000 will be paid to Advika by the Advika to the bank, and Adya will be debited with 10,000 rupees because she has to now pay the money because what she has not paid to the bank, right? So this is called with the dishonoring without noting charges. में noting charge कहीं लगा ही नहीं है, तो dishonoring हो गया, तो इसमें दोनों एंट्री आएंगी. ये dishonoring में मैं स्टार बना देता हूं. This entry won't be coming in that if dishonoring is done. Is it clear? ये आपका without noting charges हो गया. अब हम लेके चल रहे हैं बेटा नोटिंग चार्जेस, है ना. नोटिंग चार्जेस में क्या होता है कि मान के चलता हूं मैं कि दैट द बैंक को लगा कि गड़बड़ हो सकता है, इसका कुछ पैसा अमाउंट गड़बड़ हो सकता है. सो लेट्स नॉट टेक द रिस्क. इसको एक नोटरी के पास हम क्या करते हैं, एक नोटरी होता है. बैंक ने क्या किया, एक नोटरी होता है. वन नोटरी इज अ पर्सन इन अ कोर्ट. वो नोटरी के पास क्या करेंगे, वो उसको जो है बिल दिखा के उसका डिटेल्स देके और एक नॉमिनल फीस उसको दे देते हैं. मान लेते हैं उसको 300 रुपीज उसको नोटिंग का दे दिया, 300 रुपए दे दिया, रुपीज 300 पेड टू द नोटरी टू राइट डाउन द कंप्लेंट बाय सीइंग द बिल ऑफ एक्स अमाउंट, एंड देन this notary is being paid by whom? By the bank at that moment. बैंक ने उस समय पेमेंट किया क्योंकि बिल जिसके पास होता है नोटिंग चार्जेस वही पे करता है. बट नोटिंग चार्जेस जो एक्सपेंस है या लॉस है, दैट इज नेवर गोइंग टू बी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी. चाहे बैंक का हो, चाहे वो ड्रॉर का हो, वो किसी का नहीं होगा. वो हमेशा और हमेशा किसके लिए होगा, ड्रॉई का होगा. तो नोटिंग चार्जेस हमेशा वर्ड आएगा ड्रॉई के उसमें, क्योंकि इट इज अ लॉस फॉर द ड्रॉई बिकॉज ऑफ हर नॉन पेमेंट ऑफ द बिल. दिस इज बिन द केस इज बिन रजिस्टर्ड एंड to the notary, and hence she has to bear the loss of notary. तो ये नोटरी का लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका आ गया. तो इसमें क्या करेंगे, नोटिंग चार्ज. बिल तो दे दिया आपने, अब बिल दे दिया लेकिन इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, द बिल मिलने के बाद ये पैसा नहीं मिला बेटा, ये मनी इज नॉट रिसीव्ड. तो जो मिलना चाहिए था चेक या मनी वो नहीं मिला. तो ओनली बिल हैज गिवन एंड द नोटरी इज बीन पेड बाय द बैंक. सो व्हाट विल बी द एंट्री, आई एम राइटिंग इट हियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट. इसको समझिएगा. यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा. इसमें विद नोटिंग है, विदाउट नोटिंग है, एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू सी. तो 4 अक्टूबर आपका ये 4 अक्टूबर को ये भी आएगा 2000. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ₹10,000. Noting charges is a loss of the whom? Drawing. Noting. Noting charges account debit. कितना अमाउंट है, 300 रुपीज का आपका जो है लॉस है. इन दैट केस फॉर होम, दैट इज ड्रॉइंग टू, दैट इज किसको लिखेंगे अभी आप, टू डेफिनेटली Advika. Now she is supposed to pay how much? She is supposed to pay 10,300 to the Advika. Why she is going to pay 10,300 rupees? Because bank is going to ask for what? 300 rupees money, because bank has paid on behalf of whom? That is Adya.
तो बैंक क्या बोलेगा अद्विका से कि भाई आप आद्या से लेते रहे ना, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। तो 10,000 रुपीज का मेरा बिल का पैसा चाहिए और 300 रुपीज मेरा नोटरी का पैसा चाहिए जो मैंने नोटिंग चार्जेस के रूप में दिया है, तो वो पैसा भी वो ले लेगा। तो 4 अक्टूबर को मैंने और लिख दिया, देखिए ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से एक एंट्री आएगी 2000। तो नोटरी जो है इसमें क्या करेगा, ये बेटा सब 2000 ही मान के चलिए, ये ऑल आर 2000, 2020 नहीं लेना, 2000 मान लीजिए, ऑल ईयर इज 2000। तो इसमें आएगा आद्याज अकाउंट डेबिट कितना मांगा जाएगा उससे, 10,300। ठीक है बेटा, 10,300 टू बैंक now Advika has to pay 10,300 to the bank because bank is not going to suffer from because of Adya। बैंक अपना पैसा अद्विका से ले लेगा, वो सफर नहीं करने वाला। 300 रुपए नोटिंग चार्जेस वाला और 10,000 रुपीज जो उसका बिल का अमाउंट था वो ले लेगा। तो दिस वे this has been done। तो these two entries are of dishonoring without noting charges, पहला एंट्री, and dishonoring with noting charges। so ये आपका dishonoring without वाला था दोनों, ये आपका विद नोटिंग चार्जेस वाला था। अनिमेशा अद्विका गॉट इट बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको मैंने समझा दिया। अभी इसके बाद हम लोग थर्ड सीक्वेंस लेंगे, थर्ड केस ले लेते हैं। फर्स्ट टू केसेस वी हैव डन, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ।